प्रीति मैडम आपको होस्ट करूं? गुड मॉर्निंग मैम। हाँ मुझे गुड कीजिए। मॉर्निंग। हाँ।
त्यांना लक्ष दिलं अरे यार नको त्याचा घे हेलो प्रीति मैडम।
Good morning. We are waiting for our in-charge principal. She is busy in some work. In few minutes, she will join. Okay. Good morning, Ashish sir. Good morning, sir. Okay. Am I visible? Yes, sir. Just few minutes. Madam is engaged in some urgent work. Hello, Neetu ma'am. Hello, Neetu ma'am. Hello, Neetu ma'am. नहीं अभी. Just 2 minutes, sir. Okay. Yes, ma'am. Madam, you can start. Madam has joined. Okay. Preeti madam, start the session. Yes, sir. Yes. Please start the session fast. Yes, ma'am. Good morning, everyone. Albert Einstein said that once he said, look deep into nature and then you will understand everything better. Myself, Assistant Professor Preeti Shah, welcomes you all on behalf of Bharat Friends Association, Bharat College of Arts and Commerce, on the inaugural function of Nature Club. It is well said that it is in the roots, not the branches, that a tree greatest strength lies. Just like that, our greatest strength is our leader, who always stands and supports us. We are blessed to have such a great personality, our root of the team, our Neetu Madam. I welcome our in charge principal, Dr. Neetu Kapoor Madam, to address the audience with her inspiring words. Over to you, Madam. Very good morning to all on this online platform. First of all, I would like welcome today's resource person, a great personality, Mr. Ashish Lad. I've seen his profile, sir. Your profile is really astonishing. That has embarked an achievement, definitely. We feel pride having you today on this platform of Nature's Club, and the topic that you're going to speak on is also really what is the need of an hour. So sir, I welcome you on behalf of Bharat College, Bharat Friends Associations, Thank you. Bharat College of Arts and Commerce, our management, we all staff members, and all my dear students. Students, let us all understand why we have this Nature's Club. We all know over a period of time, global warming, COVID has threatened us for 1 year, 2 year, or maybe another one more year. But
global warming is threatening the upcoming future of the world. We definitely need to understand our role and responsibility in dealing with nature, in living with nature, and using the nature. Definitely, we all know that how important nature is. I've seen once upon a time my friend shared a video where she showed me that upcoming generation will not have water to live with. And today we waste water like anything. We create so much of wastage that it has become difficult for local authorities and governments to manage those wastage. We never take care while throwing things, while disposing waste materials from our house. That how do we do that? You know, when you go abroad, you are charged for waste, your waste disposal. So आप कितना kg waste निकालने वाले every day, according to that your bill is, you are given with a bill, so that you control your wastage, that you are charged. Even if you see our bill also, I think our electricity bill or house tax, I think house tax, property tax has that column waste disposal. I don't remember exactly where we are also charged, but we are charged at so minimum rate that we don't realize okay, we are paying for disposal of waste. Once we start realizing that कि इतना किलो वेस्ट निकाला तो इतना चार्ज लगेगा, इतना किलो वेस्ट निकाला तो इतना चार्ज लगेगा. Once we start, जैसे लाइट का बिल है, we all know जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा बिल आएगा. So accordingly we restrict ourselves, we don't waste electricity. Similarly, it is very necessary that we understand that we don't waste resources, or everything is a resource. Your trees are your resource, animal is a resource, water is resource, sunlight is resource. All these are, some are renewable and some are non-renewable. We should understand how do we use resources aptly, optimally, efficiently, effectively, so such that we are benefited out of it and we don't waste a single pie out of it. So for that, how do we do that? We have today's resource person with us, Mr. Ashish Lad, who has worked with various NGOs. He has done, I won't go into his introduction because someone will be definitely introducing him. I'll just say an apt personality with us to guide us on this matter. Sir, I welcome you once again to this platform of Bharat College, and students, please take benefit of all such activities. Definitely they are going to add on to your knowledge base, they are going to add on to your day-to-day behavior. Thank you, Jha sir, for organizing it. Thank you, Preeti madam, for such a wonderful introduction. I'll say that the roots lies with Sarupa family, who have given us this institution to grow. So first root is Sarupa sir, Bharat sir, Manoj sir, and thereafter we come as a follower of those mentors who has guided us on the right path. Thank you so much, and over to you, Preeti madam. Thank you, Thank you, madam. madam. Thank you so much for your encouraging words. Now I welcome convener of Nature Club, Dr. Jha sir, for giving introduction of nature clubs and to introduce our chief guest for today's session. Over to you, sir. Thank you, Preeti madam. Good morning, respected in charge principal, Dr. Neetu Kapoor madam, staff secretary, Dr. Savita Punjabi madam in her absentia, respected faculties and dear students. I, Dr. Suchan Jha, welcome all of you on the occasion of inaugural function of Nature Club. All we know that nature is the intrinsic quality that plants, animal, and other features of the world develop of their own accord. Some basic elements of the nature are air, soil, forest, biodiversity, water, etc. So the main purpose of the activities of Nature Club of Bharat College is to aware
and encourage our students about our environmental realities. For this purpose, Nature Club of our college is organizing different types of activities such as e-waste collection drive, tree plantation, visit, visit to natural places, poster making competition regarding wild animals, regarding rare wild animals, know your biodiversity. It is a big competition. So a lot of type of activities are organized since the many years by the college under the flagship of Nature Club. This year, Nature Club is also to going organize some activities such as lecture on snake awareness, nature photography, waste from waste, e-waste awareness, bird boxes, etc. In this line, we are organizing a session on watershed development today. The resource from this inaugural function is Mr. Ashish Lad. Sir has a lot of experience in different fields. Sir is related with the government projects which is run by Agriculture Department. He has 3-year experience in post-community organization, organizer under the Department of Government of Agriculture. Sir has also worked with the Shraddha Foundation for the development of mentally challenged persons. Sir is also the trainer in Yasda Foundation. Sir is also the proprietor of Lard Spices and Foods, different interests. Sir is the related with NSS. Sir is related with the different organization like Nehru Yuva Kendra. He has achieved the district level rewards. Presently, Sir is associated with the Satyamev Jayate Pani Foundation from the last 4 years. Without wasting much more times, I request Mr. Lad sir to guide our student about the importance of water. How can we collect the water? How can we collect water? How can we prepare watershed that we can improve the quantity and quality of drinking water? Sir, over to you. हेलो, Yes, मेरा आवाज आपसे आ रहा है? yes. थैंक यू सर। भारत कॉलेज आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस के सभी विद्यार्थी और प्रिंसिपल्स नीतू मैम, झा सर और शर्मिला मैम सभी ने मुझे इनवाइट किया आपसे बातचीत करने के लिए। तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आज आपके बीच वाटरशेड मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट पर मैं आज आपके स्टूडेंट से संवाद करने वाला हूं। डायरेक्टली हम टॉपिक के तरफ चलते हैं कि हमारे पास समय कम है। आपको पता ही है कि पानी फाउंडेशन 2016 से महाराष्ट्र के सूखा जिस गांव में सूखा है वहां पर काम कर रही है। आप देखेंगे कि तो महाराष्ट्र में सालों से गांव में सूखा है। सूखा होने के बावजूद उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ता है। आज आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में गिरने वाला ये सूखा प्राकृतिक नहीं है, तो ये सूखा जो है ये मानव निर्मित सूखा है। मानव निर्मित में इसलिए कह रहा हूं कि आप देख सकते हैं कि मराठवाड़ा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र में वहां पर 200 मिलीमीटर बारिश होती है
और 200 मिलीमीटर इतनी कम बारिश होने के बावजूद भी वहां पर कुछ ऐसे गांव है कि जिन्होंने वाटरशेड मैनेजमेंट का काम किया है, और वाटरशेड मैनेजमेंट का काम करके उन गांवों में आज भी पानी है, यानी कि पानी की समस्या नहीं है। इतना कम बारिश होता है 200 मिलीमीटर। और हम कोकण डिवीजन में अब जब देखेंगे तो हमारे पास कोकण डिवीजन में मुंबई, ठाना, रत्नागिरी, यहाँ पर 3000 मिलीमीटर बारिश होती है। 3000 मिलीमीटर बारिश हमारे यहाँ पर होने के बावजूद भी कुछ गांव ऐसे हैं कि उन्हें पीने के पानी की टंचाई होती है, पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। तो ऐसा क्या है कि उन जिलों में इतनी कम बारिश होने के बावजूद भी कुछ गांव में पानी उन गांवों में है? तो एक ही रीजन है कि मैंने पहले ही बताया था कि ये मैनमेड डिजास्टर है, कि मानव निर्मित दुष्काल जो सूखा है, तो मानव ही इस पर उपाय दे सकता है। तो एक ही उपाय इसमें है कि वाटरशेड मैनेजमेंट करना है, सूखा मुक्त करना है, तो वाटरशेड मैनेजमेंट करना। हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा परेशान कौन है? शहरी भाग में रहने वाले लोग और गांव में रहने वाले लोग। गांव में अगर किसान के पास पानी नहीं है तो खेती नहीं हो पाती, अगर खेती नहीं है तो उसे इनकम नहीं होती। और हम देख रहे हैं कई सालों से महाराष्ट्र के किसान सुसाइड कर रहे हैं। तो ये पानी एक वो चीज है, अगर पानी नहीं होती है तो हमारे पूरे लाइफस्टाइल पर उसका असर होता है। तो किसान तो बहुत परेशान है। उसके बाद हम देखेंगे तो गांव की महिलाएं बहुत परेशान हैं। एक हंडा पानी के लिए सॉरी टू इंटरप्ट सर, आपका वीडियो ऑफ हो गया है। ओके, अब आ रहा है? यस। हाँ। गांव की जो महिलाएं पानी के लिए 3-4 किलोमीटर उन्हें डेली जाना पड़ता है, और वो पानी लेके आती है। दिन भर उनका पानी में ही चला जाता है, क्योंकि उसे खाना बनाने के लिए पानी की जरूरत होती है, कपड़े धोने के लिए पानी की जरूरत होती है, घर के सभी कामों के लिए पानी ही लगता है। और ये पानी भरने की जिम्मेदारी किसकी है? तो उस महिला की है। पुरुष कभी पानी भरता नहीं है। तो वो क्या, तो उससे परेशान कौन होती है? वो महिला होती है। तो उसे पूरा दिन पानी ढूंढने में उसका जाता है। उसके बाद हम देखेंगे तो गांव के जो युवक है वो पलायन कर रहे हैं पुणे या मुंबई में। उसकी वजह है कि जिस गांव में सूखा है उस गांव के युवक की शादी नहीं हो पा रही। ये बहुत मैं रियलिटी में देख रहा हूँ कि इसलिए उसे पानी नहीं होने की वजह से वो कुछ बिजनेस नहीं कर पाते। फिर वो पुणे मुंबई में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे युवक जो है पुणे मुंबई में अपने बिजनेस के लिए या काम के लिए आते हैं। और दूसरी एक बात है कि सबसे सेंसिटिव मैं बोलूंगा कि गांव में जो जानवर है, जो गाय है, बैल है, उन्हें भी पानी की जरूरत होती है। मैंने ऐसे गांव में देखे हैं कि जिन गांव में पानी नहीं होने के कारण वो जो गाय भैंस पानी के बिना मर गए, उन्होंने दम तोड़ दिया है। तो इस परिस्थिति हम देख रहे हैं गांव की, और इस परिस्थिति को हटाना है। सूखा मुक्त हम भारत बनाना चाहते हैं, सूखा मुक्त हम महाराष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो ये समस्या पर क्या उपाय है? तो इस पर हम यही उपाय है कि वाटरशेड मैनेजमेंट, पानी फाउंडेशन के माध्यम से हमने 1000 गांवों में वाटरशेड मैनेजमेंट का काम किया, और 45 डेज में, सिर्फ 45 डेज में गांव पानीदार हो गया। जो हजारों सालों से दुष्काल से, सूखे से जूझ रहा था गांव, सिर्फ 45 डेज में ये गांव जो है पानीदार हुआ। हमने उन गांव को एक भी रुपए की मदद नहीं की, सिर्फ उनको समस्या क्या है उसके बारे में ट्रेनिंग दी, मोटिवेशन दिया और टेक्निक दिया। इन 3 वजहों से आज महाराष्ट्र के हजारों गांव पानीदार हो रहे। मैं एक सक्सेस स्टोरी आपको दिखाना चाहूंगा कि शाम को मैं बताना चाहूंगा कि वेणु गांव की जो सक्सेस स्टोरी है, वीडियो जो आप प्ले कीजिए, उनके माध्यम से पानी फाउंडेशन का काम, वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है, उसकी कंसेप्ट आपको क्लियर होगी। और सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ध्यान से सुनिए। कौन सा वाला है? वेलू वाटरशेड वेलू। ये वाला? यस 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 यस, राइट। तो सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे मैं सवाल पूछने वाला हूं, तो आप ध्यान से देखिएगा। मैं किसी से भी सवाल पूछ सकता हूं। ओके, स्टार्ट।
मैम वॉइस आ रहा है अभी? वॉइस नहीं आ रहा है, वॉइस आ रहा है क्या? नहीं नहीं मैडम, वहाँ पे क्लिक करो। कहाँ पे मैम? वहाँ पे देखो ऑप्शन है, वीडियो के नीचे ऑप्शन रहता है वॉइस। शेयर कंप्यूटर साउंड करके ऑप्शन रहेगा मैडम, वो चेक करो। अभी है? अभी आया क्या मैम? नहीं नहीं, हम कौन सा सेटिंग बोल रहे थे आप? जब भी शेयर स्क्रीन करोगे ना, पहले शेयर हाँ। पे क्लिक करोगे तभी विंडो आता है जिसमें कौन से शेयर डॉक्यूमेंट साउंड। ओपन है तो ओके ओके हाँ, उसमें शेयर साउंड करके रहता है। ओके, फिर से कर दीजिए मैम। अभी आया क्या? हाँ हाँ, अभी आया। सत्यमेव जयते वाटर कप 2016। दर्जनों गांव ने 45 दिन की स्पर्धा में जल संधारण का बेहतरीन काम करते हुए 1368 करोड़ लीटर पानी जमा करने की क्षमता का निर्माण किया। अब मौका था इन गांवों को सम्मानित करने का। पुरस्कार वितरण समारोह में सब लोग दिल थाम के विजेता गांव के नाम की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। पहिल्या क्रमांकाच्या पुरस्काराचे मानकरी आहेत वेळू, जिल्हा सातारा। सातारा के वेळू को वाटर कप स्पर्धा जीतने के उपलक्ष्य में 50 लाख रुपए का इनाम पानी फाउंडेशन द्वारा दिया गया। 20 लाख रुपए के अतिरिक्त पुरस्कार की घोषणा सरकार की ओर से सीएम साहब ने भी की। किसी चमत्कार की तरह सिर्फ 45 दिनों में इस गांव ने सूखाग्रस्त होने से पानीदार होने तक का सफर तय किया था। 15 अगस्त को सूखे से आजादी पाने का जश्न वेलू गांव ने धूमधाम से मनाया। पर क्या है इस चमत्कार के पीछे की कहानी? ये गांव 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। न कोई नदी, न बांध, न केनाल। खेती तो दूर, साल में 6 महीने पीने के पानी के लिए भी टैंकर के अलावा कोई चारा नहीं था। पिण्याच्या पाण्याची विहीर कोरडी आणि कंपल्सरी मागच्या 3-4 वर्षापासून 1 जानेवारीला आमच्या गावाला टँकर सुरू व्हायचा पिण्याच्या पाण्याचा। क्या हुआ वीडियो को? म्हणजे चिमणीला म्हणतो ना, पाणी प्यायला सुद्धा जागा नव्हती, म्हणजे रानात तर कोणी येतच नव्हते, म्हणजे नुसती माती बघायसाठी कशासाठी याचं। पूर्ण मी निराश झालो होतो, भरपूर कर्ज झालं। आता वाटलं काय ही शेती विकावी आणि काहीतरी करावं किंवा स्वतःला काहीतरी करून घ्यावं, इतकी मन अवस्था बिकटलेली होती। एक तरफ सूखा, ऊपर से गांव कई राजनीतिक पक्षों में बटा हुआ था। वाद, मारामाऱ्या, भांडणं हे सगळं करून आम्ही ह्या पदावर आलो। ह्या पदावर असं काही सरळ मार्गे किंवा बिनविरोध आलेलो नाही। त्यामुळे आमच्यात इतकं एकमेकाला क्रॉस झालं की आम्ही अजिबात कोणावर बोलत नव्हतो, एकमेकावर बोलायचो नाही, कोणाच्या घरी चहा प्यायला सुद्धा जात नव्हतो, रस्त्यात भेटला तर बघायचं नाही एकमेकाकडे। एक अरसे से जल संधारण का काम कर रहे डॉक्टर अविनाश पोल भी इस गांव से उकता गए थे। प्रत्येक वेळेला गेल्यानंतर गाव हे कायम काहीतरी मागायचं की साहेब तिथं पण पॉकेट लावला पाहिजे, तिथे हे लावलं पाहिजे। मला त्याचं म्हणजे आश्चर्य वाटलं की शासनाची एवढं काम गावामध्ये चालू आहे, असं असताना सुद्धा गावातला एकही माणूस आम्ही हे करू म्हणून पुढे येत नाही। मग मी त्या दिवशी थोडंसं त्यांना चिडूनच बोललो की तुम्हाला जर स्वतःत काही फावडं कुदळ घ्यायचं नसेल, श्रमदान करायचं नसेल, तर मी ह्या गावामध्ये परत पाऊल पण ठेवणार नाही। और ऐसे में संयोग से सत्यमेव जयते वाटर कप स्पर्धा की घोषणा हुई। गांव को जैसे अपने आप को सिद्ध करने का एक मौका मिला। स्पर्धा के नियमों के अनुसार गांव को ट्रेनिंग पे भेजने के लिए 5 लोगों का चुनाव करना था। इस चुनाव पर खास ध्यान दिया गया।
असा विचार केला की आपल्याला हे पक्ष किंवा आपल्या विचाराचे असं नाही, हे आपल्याला सर्वांना बरोबर घेऊन जाणारे, थोडंसं नेतृत्व गुण असणारे, व्यवस्थितपणे आपले मुद्दे मांडू शकणारे लोक आपल्याला ह्यात पाहिजे. इस गांव ने जिन 5 लोगों को भेजा उनमें एक कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर, एक पूर्व सैनिक, एक बचत गट की महिला, एक स्कूल के रिटायर्ड टीचर और एक किसान महिला थी. ट्रेनिंग पर आए इन लोगों ने मन लगाकर जल संधारण का विज्ञान सीखा और साथ में ये भी कि पानी लोगों में एकता चाहता है. जहां लोग एक हो जाएंगे, पानी जरूर आ जाएगा. ट्रेनिंग से लौटे इन लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी पूरे गांव को श्रमदान के लिए साथ लाना. पर राजनीतिक मतभेदों के चलते गांव इतना बटा हुआ था कि भरपूर कोशिश के बाद भी बात नहीं बन पा रही थी. क्या करें क्या ना करें में आखिर एक युक्ति सूझी. जो जगाला भारी तो बायकोच्या आहारी, अशी एक म्हण आहे. म्हणजे तो बाहेर किती ताकदवर असेल पण बायकोच्या पुढे मात्र तर तो एक मंत्र आम्ही अडॉप्ट केला. महिलांना कसं गोळा केलं म्हणजे महिलांच्या घरी जायचं, त्यांच्या डोक्यात घालायचं की बाबा हिवरं या गावात असं काम करते ते, तर आपल्या गावात केलं तर आपलं गाव नाही का सुखी होणार. आणि मग डेली आम्ही सगळ्या महिलांना बोलावणार, भुंगा वाजवायला सांगणार, माणसांना सांगणार. एखादी महिला घरी राहिली तर तिला बोलणार आम्ही, बा आपलं गाव सुखी होईल, पाण्याचा त्रास वाचेल आपला, तर तू ये. मग ती बी महिला येऊ शकायचे. महिला शक्ति ने अपना जादू दिखाया और गांव में काम का श्री गणेश हुआ. त्यानंतर सगळीच इन्व्हॉल्व व्हायला लागली. आता बायको जाती म्हणजे आपल्याला गेलंच पाहिजे. गांव में अच्छा काम होते देख सरपंच के विरोधक पक्ष ने भी हर मनमुटाव को दूर करते हुए गांव के हित में बड़े दिल से इस काम को अपना सहयोग और समर्थन दिया. 7-8 दिवस झाले. 7-8 दिवस ती लोक जात होती. 1-2 वेळा आम्ही आपलं त्यांच्या माघारी दुपारी जाऊन बघितलं तिथं काय करते, काय झालंय. तर वाटलं जरा काहीतरी होण्यासारखं आहे. म्हणले उद्यापासून आपण जायचं. सगळे राजकीय मतभेद विसरून त्यांनी कामकाज सुरू केलं. हा त्यांच्या मनाचा मोठेपणा आहे. गांव का प्रत्येक वर्ग अब इस काम के पीछे था. पिछले साल मिले दुष्काल राहत के वैयक्तिक पैसों में से आधे पैसे गांव के लोगों ने इस काम के लिए दे दिए. बाहर से आने वाली मदद पर निर्भर रहने वाला गांव अब अपने बलबूते पर सूखे से 2-2 हाथ कर रहा था. जब तक 45 दिनों का स्पर्धा काल समाप्त हुआ तब तक गांव का नक्शा बदल चुका था. गांव की धरती अब आने वाले पानी के स्वागत के लिए तैयार थी. और फिर बारिश का आगमन हुआ. साल 2016 में बरसे बारिश के पानी को वेलू गांव ने हैरान कर दिया. पानी के रहने के इतने ठिकाने तैयार थे कि पानी का मन वेलू को छोड़ बह जाने का नहीं हुआ और पानी ने वेलू में ही बस जाने का निश्चय किया. और पानी अकेला नहीं आया, अपने साथ सुख और समृद्धि भी लेकर आया. मग आता तुम्ही बघत असाल तर संपूर्ण हिरवीगार शेती आहे. गेल्या वर्षी ह्या दिवसात थेंब पाण्याचा नव्हता, पण ह्या वर्षी अशा पद्धतीची कंडिशन आहे की पूर्ण शिवार आमचं हिरवगार झालेलं आहे. या डिसेंबरमध्ये मी आता पूर्ण सेटल झालो. बँकेला जवळजवळ 20 लाख रुपये मी आतापर्यंत दिले आणि आतापर्यंत मिरचीला मी एकरी 20 टन मिरची घातलेली आहे. आज माझ्या गावात पाणी आहे. आता एवढा कॉन्फिडन्स आम्हाला आहे की कमी कमी एक 30-40 हजाराच्या नोकरीसाठी आम्ही गाव सोडून बाहेर नाही जाणार. आम्ही आमची शेती करू आणि त्याच्यातून आम्ही तेवढे पैसे कमवू शकतो. हा जो पंप आहे, एक वेळ अशी होती याला 55-60 पंप जरी हँडल केले एकही थेंब निघत नव्हता. आणि ह्या पंपाची जी अवस्था वेळूतल्या सगळ्या पंपांची अवस्था. पण आज काय आहे, एक पंप मारला पाणी. वेलू और वेलू जैसे कई गांवों ने
असंभव को संभव कर दिखाया है। इस साल वाटर कप स्पर्धा फिर शुरू हो रही है, पहले से 10 गुना बड़े पैमाने पर, इस उम्मीद और निश्चय के साथ कि जब हम सब साथ आ जाएंगे तो जरूर एक सूखा मुक्त महाराष्ट्र बना पाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियां इतनी जलमय होंगी कि उन्हें सूखे का नाम तक मालूम नहीं होगा। ओके ओके हमने अभी वेलू गांव की जो डॉक्यूमेंट्री थी, जिन्होंने 45 डेज में अपना गांव दुष्काल मुक्त से एक पानीदार गांव उन्होंने बनाया था। तर यहाँ पर प्रीति मैम से मैं पूछना चाहूंगा कि आपने ये डॉक्यूमेंट्री देखी, वाटर कप स्पर्धे की प्रतियोगिता से पहले उस गांव की स्थिति कैसी थी? सर वहाँ पानी के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। राइट। सूखा था, बहुत लोगों को पानी लाने में दूर तक जाना पड़ रहा था। ओके, पानी जाने के लिए दूर तक जाना पड़ रहा था, राजनीतिक मतभेद वहां पर थे, आपने देखा। ओके, और वाटर कप जब स्टार्ट होने के बाद 45 डेज में गांव में परिवर्तन आया, लोग एक साथ आए और उन्होंने अपना वाटरशेड मैनेजमेंट जो ट्रीटमेंट थे वो वहां पर उन्होंने बनाए। ओके, मैं पीपीटी प्रेजेंटेशन दे दूं। ओके, तो इस प्रकार महाराष्ट्र में 1000 गांवों ने इस प्रकार के वाटरशेड मैनेजमेंट के काम किए। उन्होंने किस प्रकार के स्ट्रक्चर वहां पर किए कि उन्होंने 45 डेज में अपने गांव में पानी को वहां पर नहीं हुआ है। ओके, सर नीचे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन होगा ना? प्रीति मैडम, अलाउ मल्टीपल स्क्रीन शेयर ऑन किया है क्या? हाँ, किया है ना? अब हो रहा है? अब स्क्रीन शेयर हो रहा है? नहीं हुआ। सर नीचे स्क्रीन शेयर का बटन रहेगा ना, वहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आपको जो स्क्रीन शेयर करना है उस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। गणेश दादा, प्रीति मैडम, प्रीति मैडम। हाँ सर। मुझे मिस कुछ कर रही है। यस मैम। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। प्रीति मैडम, आप मेल पे ले लो ना उनका स्क्रीन, उनका जो पीपीटी है, एंड शेयर इट। यस मैम। सर आपके पास मेरा मेल आईडी होगा ना, आपने हाँ, जो हाँ। मुझे, हाँ आप उस पे मेल कीजिए।
सर मेल किया क्या आपने? हाँ मेल करो। मैंने लिंक आपको भेज दी है। सर एसएस का रिक्वेस्ट है। हाँ मेल मिला मैम आपको? सर एसएस नहीं मिल रहा। वहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा आपको। Please wait, students. हाँ आपको मेल मिला है क्या? सर मुझे मेल मिला है लेकिन एसएस नहीं मिल रहा है। आपने उसमें अलाउ नहीं किया है। यू नीड एसएस।
जहाँ सर, हेलो, मैं सर को व्हाट्सअप कर दिया है। ये सर मैं लेती हूँ सर। चाहे सर आप हेलो। मुझे फॉरवर्ड कीजिए ना। हेलो सर। हाँ, जहाँ सर को मैं व्हाट्सअप कर दिया है। हेलो आशीष सर। हेलो 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 सर। मैम सर शायद मीटिंग में नहीं है, मतलब अभी कुछ नेटवर्क इश्यू होगा। मैम मैं कॉल करती हूँ। जहाँ सर का कॉल ही नहीं लग रहा। ओके, उन्होंने व्हाट्सएप नहीं किया क्या? नहीं मैम, मैं करती हूँ उनको। हाँ हाँ, आशीष सर आ गए हैं। हाँ सर, आशीष सर। हेलो हेलो सर। हेलो हेलो। हाँ सर मिला मुझे, मैं अभी करती हूँ। ओके। यस सर। हेलो, सॉरी, अक्सर मुझे गूगल मीट पर प्रेजेंटेशन करने की आदत है और यहाँ से आज स्क्रीन शेयर नहीं हो रहे। तो हम अपने अभी जो डॉक्यूमेंट्री देखी वाटरशेड के बारे में, जो वेलू गांव ने 45 डेज में अपना गांव दुष्काल मुक्त किया और पानीदार गांव हुआ। तो मैडम नेक्स्ट, वाटरशेड मैनेजमेंट, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, जो मैंने बताया कि पानी फाउंडेशन की शुरुआत 2016 में हुई और 10,000 से अधिकतर गांव में ये वाटरशेड का काम हुआ है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हाँ, शुरुआत 3 तालुके से हुई थी। उसके बाद ये 75 तालुकाज में महाराष्ट्र में अभी तक इनका काम चालू है और आने वाले समय में कोकण डिवीजन में भी वाटरशेड का काम चालू होगा। आपको अभी मैं कंसेप्ट क्या है वाटरशेड मैनेजमेंट की, किस प्रकार के स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाए जाते हैं, जिनमें से दौड़ते पानी को हमें चलना सिखाना है और चलते पानी को रुकना सिखाना है और रुक हुए पानी को जमीन में पर्कुलेट होना सिखाना है। यही सूत्र के आधार पर हम गांव में काम करते हैं। तो वाटरशेड मैनेजमेंट के कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि ये गांव पानीदार हो सकता है, तो उसके बारे में आपको डिटेल देना चाहूंगा। मैम नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में
सीसीटी नेक्स्ट स्लाइड। यस ओके, तो देखिए वाटरशेड मैनेजमेंट में सबसे महत्वपूर्ण जो स्ट्रक्चर है कंटिन्यूअस कॉन्ट्रास्ट ट्रेंचेस। बैक आइए मैम, सीसीटी स्लाइड, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रास्ट ट्रेंचेस। हाँ ओके, तो ये देखिए ये एक, इसे कंटिन्यूअस कॉन्ट्रास्ट ट्रेंचेस बोलते हैं। हम पहाड़ी इलाकों में जो पानी जो गति होती है, बारिश जब गिरता है तो उसकी बहने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है और वो स्पीड से हमारे गांव से दूसरे गांव में चला जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो बारिश में पानी गिरता है उसे किसी तरह स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। तो ये सीसीटी जो होते हैं कंटिन्यूअस कॉन्ट्रास्ट ट्रेंचेस, ये जो गड्ढा है, खड्डा जो है इसे कहते हैं, तो वो क्या करता है, जो बहता पानी है उसको रोकता है और उस पानी के साथ मिट्टी को भी रोकता है। यानी कि वो पानी उस खड्डे में जब जमा होता है उसके बाद वो पर्कुलेशन होता है, जमीन में मुड़ना चालू होता है। इसकी वजह से क्या होता है, वाटर ग्राउंड वाटर जो है इंक्रीज होने के लिए हमें हेल्प मिलती है। तो ये सीसीटी हर हम पहाड़ में खोदते और ये श्रमदान के माध्यम से गांवकरी जो है ये काम करते। ये सीसीटी एक चमत्कारी खड्डा है जिसके कारण जो पानी बह रहा है अपने गांव से दूसरे गांव तक, उससे रोकने का काम करती है, स्पीड ब्रेकर का काम करती है। इस खड्डे को हम सीसीटी कहते हैं, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रास्ट ट्रेंचेस। इसका काम है पानी को रोकना और जमीन में उसे पर्कुलेट करना और जो मिट्टी है उसे रोकने का काम करते हैं। ये बहुत सारे हम उस पहाड़ पर बनाते हैं। नेक्स्ट, हाँ सेकंड वन है लूज बोल्डर स्ट्रक्चर। ये क्या कहते हैं, हम देखते हैं गांव में जो नाला होता है वो बारिश गिरने के बाद नाले से भी पानी फास्ट बह के जाता है। तो वहां पर हम दगड़ का ये लूज बोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ दगड़ इकट्ठा करते और वो स्ट्रक्चर बना देते। एक स्ट्रक्चर बनने के बाद उस एक किलोमीटर के बाद दूसरा स्ट्रक्चर। इनका आप देखिए हमारा काम क्या है, जो पानी बह के जा रहा है बारिश का पानी, उसे रोकना, उसे स्थिर करना, उसे स्टॉप करना। तो उसके लिए हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये अलग सा स्ट्रक्चर है, लूज बोल्ट स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका काम है जो पहाड़ से पानी आ रहा है वो उस पत्थर में फिल्टर होता है। ओके, मिट्टी वहां पर रुकी जाती है और पानी की गति कम हो जाती है। तो ये स्ट्रक्चर इसलिए बनाए जाते हैं कि पानी की गति कम हो, हमारे गांव में जो पड़ने वाला पानी है गांव में ही रुके, इसलिए ये लूज बोल्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट, फार्म बंड। आपने बहुत सारे गांव में देखे होंगे कि ये फार्म बंड जो है ये एक प्रकार का बनाया जाता है। ये एक बॉक्स होता है जिसे हम शेततळे मराठी में कहते हैं, हिंदी में भी शेत उसे बोलते हैं। क्या होता है, नाले के बाजू से जो पानी जा रहा है उसे हम स्टोर करने के लिए इस नाले में लेके आते हैं और यहाँ पर नाले में पानी स्टोर होता है और कुछ पानी जो है वापिस पर्कुलेशन होने का काम करता है। यानी कि हमारे गाँव में जो बारिश गिर रही है वो हमारे गाँव में किस प्रकार रुके, तो इस प्रकार का एक हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये श्रमदान के माध्यम से नहीं होता, ये मशीन के माध्यम से बनाना पड़ता है। तो ये फार्म बंड जो है ये तीसरा स्ट्रक्चर है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर भी हम वाटर स्टोरेज के लिए बना सकते हैं। नेक्स्ट, वेल रिचार्ज। आपने देखा होगा कि आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं, जैसे कि ये वेल रिचार्ज करना जरूरी है। तो हम जो दुष्काली भाग में जो रिवर है उसको किस प्रकार से रिचार्ज करते, तो पहले आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ऊपर का, एक नाला वहां से जा रहा है और यहाँ पर लास्ट में एक रिवर है। तो नाले का पानी हम फिल्टर करके रिवर में छोड़ते, सॉरी वेल में छोड़ते। जो रिवर का पानी है वो फिल्टर करके हम वेल में छोड़ते, वो फिल्टराइजेशन। और सेकंड, इसमें आप देख रहे वीडियो फोटो है, उसमें एक वजह से पाइप से पानी वेल में आ रहा है। ओके, तो इस प्रकार से हम वेल को रिचार्ज करते, इससे भी बहुत वाटर लेवल जो है इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, शॉप पिट, इसे हम मैजिक पिट भी बोलते हैं। हमारे गांव में हम देखेंगे तो 500 घर होते हैं। डेली का वो कपड़े धोने के लिए उनको पानी की आवश्यकता होती है, नहाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। वो वेस्टेज पानी है ना, हमारे बाथरूम से निकल के रास्ते पर छोड़ दिया जाता है गांव में। तो बहुत सारा, एक घर को यूज करने के लिए 500 लीटर पानी की रोज की आवश्यकता होती है। और वो 500 लीटर पानी हमारे जब बाथरूम से निकलता है तो वो रास्ते में चला जाता है, उसका पर्कुलेशन भी नहीं होता है
और वो रास्ते पर हम देखते कि गटार जैसा बन जाता है। तो ये मैजिक पिट जो है उससे क्या करते हैं, एक 4x4 का खड्डा लेते हैं, उसमें प्लास्टिक की टाकी या सीमेंट की टाकी डाल दी जाती है, जो बाथरूम से हमारा पानी निकल रहा है उस गड्ढे में जाता है। आप सोचिए गांव में अगर 500 घर है और डेली के एक घर 500 लीटर का पानी वेस्ट करता है, अगर वो 500 लीटर पानी इस खड्डे में अगर जाता है ये शॉप पिट में, तो 500 लीटर एक घर का पानी, अगर 500 घर रहेंगे वहां पर, तो कितना पानी जमीन में परकुलेट होगा। मैंने बहुत सारे ऐसे गांव देखे जिन गांवों ने सिर्फ ये शोष खड्डा, जिसे हिंदी में कहते हैं शोष खड्डा, शॉप पिट, मैजिक पिट, उन गांवों ने बनाए। उन गांव के बोर जो है 15 दिन में चालू है। तो इस प्रकार का भी एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि घर के पानी को वेस्ट न जाने दे। ओके, नेक्स्ट। हम देखते कि गांव में शॉप पिट करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। अगर हम सिटी में बात करेंगे तो हमारे छत पर जो पानी गिरता है, बहुत सारा पानी गिरता है। हमने पहले ही कहा था कि कोकण डिवीजन में 3000 मिलीमीटर बारिश गिरता है। तो वो छत पर गिरने वाला बारिश, उसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। उसके लिए भी स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। 2 प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग में। एक हम पानी को स्टोर करके रख सकते हैं और एक हम जमीन में परकुलेट कर सकते हैं। तो वो डिपेंड रहता है कि आपको जमीन में पानी छोड़ना है या स्टोर करना है जो पानी, कि हम गर्मियों में उस पानी का यूज करें। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बहुत जरूरी है वाटरशेड मैनेजमेंट में। तो कुछ गांव में रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बनाते, और हम अब देखेंगे मुंबई में कई अपार्टमेंट में ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग की है। तो ये भी उस वाटरशेड मैनेजमेंट का एक पार्ट है। नेक्स्ट। चेक डैम। हम देखते हैं कि जो हम बारिश का पानी रोकने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये एक सीमेंट का स्ट्रक्चर है कि उसमें बहुत सारा पानी स्टोर होता है। आप सेकंड पीक में देख सकते हैं जो हमने काम किया था, और उसके बाद पानी कैसा स्टोर हुआ है। हमारा क्या होता है, नाले में से पानी बह जाता है, तो उसे स्टॉप करने के लिए ये स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं। तो पत्थरों का हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, आप दूर तक देख सकते हैं। एक 30 मीटर पर हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, तो पानी को रोका जाता है। ओके, तो हमारा लक्ष्य यही है कि जो पानी बह रहा है उसको स्टॉप करना है और जमीन में परकुलेट करना है। तो इससे क्या होता है, वाटरशेड ग्राउंड वाटर बढ़ने में सहायता मिलती है। ओके, ये है एक चेक डैम, लास्ट में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट। जल्दी ले रहा हूं क्योंकि समय हो रहा है, इसलिए। बहुत ही जरूरी है कि हम वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में सोच रहे, तो प्लांटेशन बहुत ही जरूरी है। अगर हमारे गांव में अगर पेड़ ही नहीं है, पौधे ही नहीं है, वो बारिश ही वहां पर कम गिरने का रीजन यही होता है कि वहां पर पेड़ नहीं है। हमने ज्यादातर पेड़ जो है हमने डेली रूटीन के डेली यूज में काट दिए। तो हमने एक नई कंसेप्ट लेके आई है, और ये कंसेप्ट आप देखिए, अकीरा मियावाकी, ये जापानीज टेक्निक है। इस टेक्निक के माध्यम से पेड़ जो है 1 साल में हमारे सर के ऊपर चले जाते हैं। ये टेक्निक के माध्यम से हमने हर गांव में प्लांटेशन कर रहे, और अकीरा मियावाकी जो फॉरेस्ट है 1 या 2 साल में उस गांव में कुछ इलाकों में हम जल्द से जल्द फॉरेस्ट का भी डेवलप करें। क्योंकि अगर उस गांव में पेड़ नहीं रहेंगे तो पानी को वो अपने गांव में नहीं खींच पाएंगे। अगर ज्यादा पेड़ रहेंगे तो ही उस गांव में बारिश होती है। तो अकीरा मियावाकी फॉरेस्ट, ये कंसेप्ट में सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि एक ध्यान से देखिए कि 2 साल में किस प्रकार पानी फाउंडेशन ने एक घना जंगल हमने निर्माण किया है। तो प्रीति मैम से मैं विनती करूंगा कि वो जल्द से जल्द अकीरा मियावाकी का वीडियो चालू करें। सर ये वाला नहीं नहीं, नेक्स्ट। हाँ, संभव है क्या पलट देना उस नुकसान को जो इंसानों ने पहुंचाया है प्रकृति को? क्या बंजर पड़ी जमीन पर फिर लहलहा सकता है एक घना जंगल? सिर्फ 2 साल में
सितंबर 2018 प्रेरणा पाकर जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी से पानी फाउंडेशन ने से ट्रीज एनवायरमेंटल ट्रस्ट की भागीदारी के साथ एक महत्वाकांक्षी प्रयोग शुरू किया। 2000 पौधे लगाए। महाराष्ट्र के सातारा जिले के न्हावी बुद्रुक गांव के ग्रामवासियों के सहयोग से श्रमदान के जरिए पौधे पास पास लगाए गए ताकि तेजी से बढ़ने के लिए उनमें स्पर्धा हो। इस तरह से पौधों का मिश्रण किया गया जैसा सहज होता है एक जंगल में। और फिर देखते ही देखते एक जंगल आकार लेने लगा। दो साल में एक भरे पूरे जंगल का जन्म हुआ। पौधों से बने पेड़ 100%। इतना घना जंगल जिसे भेद पाना कठिन है। तितलियों, मधुमक्खियों और पक्षियों ने अपना सा किया जंगल। प्रकृति में लौट आया जीवन। ओके, आपने देखा कि 2 साल में हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हमने देखा कि मियावाकी जो टेक्निक है ये जापानीज टेक्निक है और उस माध्यम से हमने 2 साल में एक मैनमेड जंगल का निर्माण किया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी ये चालू है हर गांव में कि हम 2 साल में किस प्रकार का से मैनमेड ये फॉरेस्ट बना सकते हैं। तो इसमें हम एक ही टेक्निक यहाँ पर है कि पेड़ जो है वो पास पास लगाए क्योंकि उनमें स्पर्धा हो सूर्य प्रकाश लेने के लिए, इसलिए वो जल्दी से उनकी हाइट में बढ़ोतरी हमें दिखती है। तो ये टेक्निक्स का यूज किया है मियावाकी फॉरेस्ट बनाने के लिए और
कुछ दिनों में महाराष्ट्र के हर गांव में इसी प्रकार के मैनमेड जंगल हम देख सकते हैं। कुछ कॉलेजेस में भी अभी एनएसएस कैंप के माध्यम से ये मियावाकी प्रोजेक्ट के माध्यम से उनके कैंपस में और किसी गांव में ये प्रोजेक्ट खड़ा कर रहे हैं और एक फॉरेस्ट बनाने की प्रयास में काम चालू है। तो अगर आप नेचर क्लब के माध्यम से इस प्रकार काम कर रहे हैं तो इसके बारे में हम आपको गाइडेंस कर सकते हैं कि किस प्रकार से ये मियावाकी का फॉरेस्ट आप बना सकते हैं। ओके नीतू मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्रीति मैडम। So this video. PPT. Okay. सर हाँ नेक्स्ट देखिए, हमने बताया कि हमारा श्रमदान, लास्ट बैक साइड श्रमदान का स्लाइड, यस राइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आमिर जी कुछ श्रमदान कर रहे हैं, कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सेलिब्रिटी जुड़े, और पिक्चर में हम देख रहे हैं कि गांव के श्रमदान। हमने श्रमदान क्यों कि श्रमदान ये जादू छड़ी है। महात्मा गांधी जी भी कहते हैं कि अगर गांव को गांव विकास करना है तो श्रमदान होना जरूरी है। वो काम हम हाथों से करने के लिए बोलते हैं, पीपल मूवमेंट्स हमने बनाई है, नहीं तो ये काम मशीन से भी होता है। मगर एक बात है कि लोग सामाजिक मतभेद होते हैं, उनके कारण गांव एक नहीं आ पाता कुछ प्रोग्राम के लिए। तो श्रमदान एक ऐसी जादू की छड़ी है, लोग आप से जो मतभेद है हेलो सर। हाँ Hello? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। हाँ, श्रमदान के माध्यम से लोग एक साथ आते और वो काम करने के लिए शुरू करते। हमने बहुत सारे देखा है कि गवर्नमेंट कितना भी काम हमारे गांव में करो तो उसके उन कामों में अपनेपन की भावना नहीं होती। जब लोग एक साथ आकर खुद वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमारा गांव पानीदार होने के लिए मेहनत करते हैं, और वो जब स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसमें अपनेपन की खुशबू रहती है, हमने काम किया है। तो श्रमदान के माध्यम से, पीपल मूवमेंट्स के माध्यम से ये काम किया जाता है कि लोगों को लगे ये हमारी समस्या है, ये हम सॉल्व कर सकते हैं। कोई गवर्नमेंट जो पॉलिटिशियन आकर हमारी समस्या नहीं सॉल्व करते। तो पीपल को मूवमेंट्स में यही बताया जाता है कि तुम्हारी समस्या तुमको सॉल्व करनी है। ओके नेक्स्ट। जो हमारा हमने बताया कि पानी फाउंडेशन के माध्यम से वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए हम 1 रुपया उनको नहीं देते, वो गांव को हम ट्रेनिंग देते। तो यहाँ पर मेरे कई तस्वीरें हैं कि जो हम फील्ड विजिट पर लेके जाते, जिन गांव में वाटरशेड के मैनेजमेंट के प्रोग्राम हुए उन गांव को उनको दिखाते हैं, उसके बाद उनको ट्रेनिंग देते, टेक्निक्स के बारे में, स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिखाई इस टेक्निक कि किस प्रकार ये स्ट्रक्चर बनाए जाते, उसकी ट्रेनिंग गांव को दी जाती है। गांव वाले ट्रेनिंग के बाद घर जाते और उनको समय दिया जाता है कि 45 डेज में आपको कंप्लीट करना है, और जो गांव अच्छा काम करता है तो उसको 75 लाख डिस्ट्रिक्ट अवार्ड से अवार्ड दिया जाता है, और तालुका में जो काम अच्छा करता है उसे 10 लाख का अवार्ड्स देते हैं। यानी कि ये स्पर्धा जो हम कंपटीशन शुरू हो जाती है हर गांव में, बेहतरीन काम करने के लिए काम करते, और उसमें से 45 डेज में वो स्ट्रक्चर बनाते और उनका गांव जो है पानीदार हो जाता है। तो ट्रेनिंग के माध्यम से सिर्फ मोटिवेशन और वो काम किस प्रकार करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। नेक्स्ट। तो मैडम पहले स्लाइड पर आए, वाटर बजट पर आइए। वाटर बजट पर यूट्यूब पर 2 मिनट मैम। देखिए, पानी अगर आप में गांव में आता है मगर हम वाटर बजटिंग नहीं करेंगे, ये शब्द अलग है। वाटर बजट हमने सुना है कि पैसे का बजट हम बनाते हैं। अगर हमारे घर में शादी रहेगी तो हमें कितना खर्च करना है। अगर हमारा 10 लाख का बजट है तो हॉल के लिए इतना खर्च होना है, गहनों पर कितना खर्च होने वाला है, खाने पर कितना खर्च होना है, उसका एक बजट करते हैं। ये आर्थिक का बजट होता है। और ये वाटर बजट
एक नई कंसेप्ट है, पुरानी है मगर अभी लोगों के पास सामने आ रही है, वाटर बजटिंग का। यानी कि मैंने कहा कि हमारे गांव में 200 मिलीमीटर बारिश होती है, 300 मिलीमीटर बारिश होती है, तो हमारे गांव में इस साल बारिश कितनी हुई है, हमारे पास कितना पानी है, और हम खेती के लिए कितना पानी यूज करना है, घर के यूज के लिए कितना पानी यूज करना है, इंडस्ट्री के लिए कितना पानी यूज करना है। तो गांव वालों को ये बताया दिया जाता है कि तुम्हारे गांव में 200 मिलीमीटर बारिश हुई है, तुम्हारे बोर में कितना पानी है, तुम्हारे जो स्ट्रक्चर बनाए हैं, नाला है, जैसे कि तालाब है, इतने पानी इतना ही बचा है, तो आपको मैनेजमेंट करना होगा, खर्च करना है तो लिमिट में खर्च करना होगा। तो उसके लिए एक वाटर बजट कंसेप्ट है। अगर हमारे पास पानी बहुत है मगर खर्च कैसे भी कर रहे हैं, वेस्टेज कर रहे हैं, तो उस वजह से भी हम पानी की समस्या को फेस कर सकते हैं। तो ये फिल्म भी देखिए वाटर मैनेजमेंट का, किस प्रकार हम गांव ने पानी की समस्या को हल किया है। थैंक यू सर। तेलंगाना में मुसम्पल्ली गांव के नाम एक अजीब रिकॉर्ड है। इस गांव में बोरवेल्स की संख्या लोक संख्या से भी ज्यादा है। पुराने जमाने से जो कुएं और तालाब गांव को पानी देते थे, वो बोरवेल तकनीक आने के बाद देखरेख की कमी और उपेक्षा के चलते सूख गए। लेकिन त्रासदी ये है कि मुसम्पल्ली के सैकड़ों बोरवेल भी गांव की पानी की समस्या को सुलझा नहीं पाए। ज्यादातर इन बोरवेल्स में पाणी लगा ही नहीं, और जिनमें लगा भी था वो अब सूखने की कगार पर है। शेतकऱ्यांकडून असं कळलंय की 5000 बोरवेल्स खणल्या गेल्या, त्यापैकी फक्त 200 पाणी लागलंय। पाण्याच्या आशेने शेतकरी 600, 700, अगदी 1000 फुटापर्यंत खणतायत। पानी की तलाश में एक किसान ने तो इतने बोरवेल खोदे कि नाम ही बोरवेल रेड्डी पड़ गया। मुसम्पल्ली की ये कहानी आज भारत के हजारों गांव की कहानी है। सैकड़ों सालों से जमीन के नीचे जमा हुआ पानी इतनी तेजी से खींचा जा रहा है कि भूजल का स्तर और उपलब्धता कम हो चला है। पानी की आस में जमीन खोदते किसान के हाथ निराशा ही लग रही है। शेतकरी काय विचार करतो की ही माझी जमीन आहे आणि माझ्या जमिनीत मी बिंदास बोरवेल खणू शकतो। नुसते खणत चालले, कित्येक बोरवेल्स कोरड्या पडून आहेत नुसते। लेके एनीथिंग। अगर हालात इसी तरह आगे बढ़े तो वो दिन दूर नहीं जब जमीन के अंदर का सारा पानी खत्म हो जाएगा। लेकिन सौभाग्यवश कुछ गांव ने इस नासमझी से अपने को बचाया है। उन्होंने इस बात को समझा है कि अगर अंधाधुंध जमीन के नीचे का पानी खींचा जाएगा तो वहां भी पानी नहीं बचेगा। इसलिए नालगोंडा जैसे गांव ने अपना पानी बचाए रखने की एक तरकीब निकाली है, वाटर बजट। जैसे किसी गृहस्थी का बजट आमदनी के हिसाब से खर्च तय करता है, वैसे ही वाटर बजट पानी की उपलब्धता के हिसाब से पानी का खर्च तय करता है। रेन गेजेस के इस्तेमाल से समुदाय ये पता लगाता है कि इस साल कितनी बारिश हुई है और गांव के पास तालाबों, कुओं और जमीन के नीचे कितना पानी उपलब्ध है। इस बात का भी अनुमान लगाया जाता है कि गांव को खेती, पीने के पानी और दूसरी जरूरतों के लिए कितना पानी चाहिए। एक बार ये हिसाब निकल आता है तो ये पता करना आसान हो जाता है कि गांव के पास उतना पानी है या नहीं। इसके बाद समुदाय ये तय करता है कि उन्हें कैसे इस पानी का खर्च अक्लमंदी से करना है, किस किस्म की फसल लगानी है, किस किस्म की नहीं। कोणत्या पिकाला किती पाणी लागतं ही माहिती सर्व गावकऱ्यांसमोर ठेवली जाते आणि आम्ही सर्व मिळून ठरवतो की कोणतं पीक घ्यायला हवं। इस प्रकार के सामुदायिक निर्णय की एक बेहतरीन मिसाल महाराष्ट्र के हिवरे बाजार में देखने को मिलती है। यहाँ के सरपंच श्री पोपटराव पवार ने अपनी दूरदृष्टि से पूरी दुनिया के सामने एक आदर्श स्थापित किया है। यहाँ सामुदायिक रूप से इस बात को तय किया जाता है कि कुछ भी हो जाए पर जमीनी पानी का स्तर एक हद से नीचे नहीं गिरने दिया जाएगा। 95 में ग्राम सभा ने ये तय किया कि हमारे गांव में आज हम तो वाटर रिचार्ज कर रहे हैं, लेकिन ठीक से पानी का यूज नहीं करेंगे तो फ्यूचर में वापस प्रॉब्लम आएंगे। इसलिए हमें ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट और क्रॉप मैनेजमेंट करना है, इसलिए ग्राम सभा बुलाई गई। इसके लिए गांव ने कई नियम बनाए हैं। पूरे गांव में बोरवेल्स पे पाबंदी है। इस बात को समझ लिया गया है कि पानी किसी की निजी संपत्ति नहीं है बल्कि एक सामुदायिक संपत्ति है। ट्यूबवेल को बैन कर दिया, जो डिप ज्यादा नीचे हम लोग अभी वाटर लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो इसके कारण काफी प्रॉब्लम्स हुए।
ट्यूबवेल हम खाली पीने के पानी के लिए लेंगे, 200 फीट का पानी पीने को यूज करेंगे और 60 फीट का पानी हम सिंचाई के लिए, फसल के लिए यूज करेंगे। गन्ने की फसल को हतोत्साहित किया गया है क्योंकि उसके लिए बहुत पानी की जरूरत होती है। उसकी जगह पे बैंगन, टमाटर और प्याज जैसी फसलों को लगाने की सलाह दी गई है जो कम पानी का इस्तेमाल करती हैं। जिस फसल को ज्यादा पानी की जरूरत है, गन्ना हो, बनाना हो, वो बैन कर दिया। अगर करना है तो ड्रिप कंपल्सरी है, स्प्रिंकलर कंपल्सरी। ये क्रॉप फसल का नियोजन और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट का प्लानिंग अच्छा हुआ करके अभी ग्राउंड वाटर लेवल हमारी मेंटेन है। जिस साल बहुत कम बारिश होती है उस साल पीने के पानी को ही प्राथमिकता दी जाती है, खेती को नहीं। रबी की फसल कम क्षेत्रफल में बोई जाती है और कभी कभी गर्मियों में फसल नहीं ली जाती। अगर शॉर्टेज पीरियड आ गया पानी का तो ग्राम सभा डिसाइड करती, फिर फसल कम होती है, फसल रुक गई तो सबको पानी मिलता है। इस समझदारी और दूरदृष्टि के परिणाम यहाँ साफ दिखते हैं। विचार अगर 100 लीटर है तो हम 80 लीटर यूज करते हैं, 20 लीटर हमारा बैंक में स्टोर रहता है और इसका फायदा है कि अप्रैल मई में पीने के पानी की गारंटी मिलती है। हिवरे बाजार जैसे गांव से आज हमें सीखने की जरूरत है। प्रकृति द्वारा दिए गए पानी के वरदान का अगर हम सूझबूझ से इस्तेमाल करें तो हर गांव के पास इतना पानी रहेगा कि सूखा पड़ने की स्थिति में भी पानी के लिए हाहाकार नहीं मचेगा। बस आप एक बार हैंडपंप को पंप करेंगे तो आपको पीने को पानी मिलेगा। अगर सेकंड प्रयास है तो हम आपको 100 रुपए गिफ्ट में दे देंगे। ओके, आपने देखा वाटर बजटिंग की कंसेप्ट क्या है, जो पानी है उसको किस प्रकार खर्च करना जरूरी है। तो इस प्रकार वाटर बजटिंग भी हम गांव वालों को सिखाते हैं। उसके बाद वो क्रॉप्स मैनेजमेंट करते हैं, कौन सा उस प्रकार की खेती लेनी है, कम पानी में जिस पौधे को लगता है उस प्रकार की खेती वहां पर की जाती है। और एक मैं लास्ट आपको एक बताना चाहूंगा कि मैम वो पीपीटी ओपन कीजिए। हाँ, लास्ट फर्स्ट पीपीटी पर आइए। सब स्टार्टिंग से कर आइए रहे हैं। पीछे, हाँ स्टार्टिंग में आइए। हाँ वेट वेट वेट, ओके व्हाट, हाँ आगे और नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके रुकिए, एक फॉर्मूले के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पहले आपको बताया कि 200 मिलीमीटर बारिश कुछ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और हमारे कोकण डिवीजन में 2000 मिलीमीटर बारिश होती है। आपको पता है बारिश को कैसे मापा जाता है, तो हाइट में मापा जाता है। यहाँ पर एक स्क्रीन दिया है, देखिए स्क्रीन पर वो रेन गेज आपको दिखी होगा। वो रेन गेज ग्राउंड में रखते हैं जब बारिश होती है, तो बारिश होने के बाद वो भर जाता है, तो उससे हमें पता चलता है कि 10 मिलीमीटर बारिश हुई है, 20 मिलीमीटर बारिश हुआ है, 30 मिलीमीटर बारिश हुआ है। तो बारिश जो है वो हाइट में मापी जाती है कि हाँ, मैं अभी जो आपको बोल रहा हूँ कि हमारे गांव में 200 मिलीमीटर बारिश हुई, तो वो कैलकुलेशन कैसे किया है। ओके, तो ये जो है वो रेन गेज के माध्यम से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर बारिश कितनी हुई। और एक फॉर्मूले के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ये ध्यान से देखिए फॉर्मूले के बारे में। ये फॉर्मूला मैंने नहीं बनाया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने कई साल एक्सपेरिमेंट किया है और ये फॉर्मूला बना है। देखिए, मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा इसके लास्ट में। अगर 1 हेक्टर यानी कितना है पता है आपको? कोई बताएगा 1 हेक्टर यानी कितनी जमीन? मैसेज भी कर सकते हैं, 1 हेक्टर यानी कितनी जमीन? एकड़ 2.5 एकड़। राइट।
सही जवाब दिया कि 1 हेक्टर में 2.5 एकड़ जमीन हम उसको बोलते हैं। अगर 1 हेक्टर में 1 मिलीमीटर अगर बारिश गिरता है, देखिए ये कैलकुलेशन मैंने नहीं बनाया, 1 हेक्टर में 1 मिलीमीटर बारिश गिरता है तो पानी का 10,000 लीटर वाला एक टैंकर तो आपने देखा होगा, पानी का टैंकर, उतना पानी जमा होता है। फिर से मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 1 हेक्टर जमीन पर 1 मिलीमीटर अगर बारिश होती है तो पानी का 10,000 लीटर वाला टैंकर भरेगा, उतना पानी जमा होता है। तो ऊपर मैंने दिखा है कि 1 हेक्टर में 1 मिलीमीटर बारिश होती है तो पानी का एक टैंकर यानी कि 10,000 लीटर का पानी जमा होता है। ये फॉर्मूला है, ओके, ये साइंटिस्ट लोगों ने बनाया है। अगर आप देख लीजिए कि मेरा गांव है, दहिवली गांव है, उस गांव में अगर समझ लो 200 मिलीमीटर बारिश होती है, देखिए बहुत दुष्काली भाग जो है पश्चिम महाराष्ट्र में, वो हमें अक्सर बोलते हैं सर हमारे इधर बारिश नहीं होती इसलिए हमारे पास पानी नहीं है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये प्राकृतिक नहीं है, तो ये मानव निर्मित है। तो मराठवाड़ा में 200 मिलीमीटर बारिश होती है, वो बोलते हैं सर तुम्हारे पास तो 3000 मिलीमीटर बारिश होती है, हमारे पास 200 मिलीमीटर बारिश होती है, हमारे पास पानी नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि वो पानी को हम कैलकुलेट करते, देखिए 1000 हेक्टर का गांव है, सपोज मेरा गांव दहिवली गांव है, वो 1000 हेक्टर का गांव है और हमेशा उस गांव में 200 मिलीमीटर ही बारिश होती है। 200 मिलीमीटर बारिश होती है तो कितने टैंकर भरेंगे? ओके, तो हम अगर कैलकुलेशन करेंगे ना, ये फॉर्मूले में डालेंगे, 1000 हेक्टर जमीन पर अगर 200 मिलीमीटर बारिश होगे तो पानी के कितने टैंकर जमा होंगे? आपको पता है कितने होंगे टैंकर जमा? 1 हेक्टर पर 1 मिलीमीटर जब बारिश होता है तो पानी का एक टैंकर जमा होता है। तो 1000 हेक्टर जमीन पर 200 मिलीमीटर अगर बारिश होती है तो कितना टैंकर पानी जमा होगा? कोई बताएगा? आपके सामने सब कैलकुलेशन फॉर्मूलेज है। Students, write the answer in the chat box. हाँ, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। फिर से रिपीट करूं मैं, 1 हेक्टर में 1 मिलीमीटर बारिश होती है तो पानी का एक टैंकर जमा होता है 10,000 लीटर का। अगर 1000 हेक्टर में 200 मिलीमीटर, जो कि कम बारिश है बहुत ही, वो अगर होती है तो कितना पानी जमा हो जाएगा मेरे गांव में, और वो पानी को मैं उठाकर टैंकर में भर दूं तो कितने टैंकर भरेंगे? तो मैं ही बताता हूँ आपको, 1000 हेक्टर में 200 मिलीमीटर जब बारिश होती है तो पानी के 2 लाख टैंकर, कितने टैंकर? 2 लाख टैंकर। हम देख सकते हैं कि मेरे गांव में पर्जन्य देवता ने हमें 2 लाख टैंकर दिए एक ही बारिश में, जो 200 मिलीमीटर की बारिश हुई। तो 1000 हेक्टर में जितना बारिश हुआ हमने वो उठाया और वो कैलकुलेट किया और टैंकर में भरा, तो 2 लाख टैंकर हमारे गांव में एक दिन में बारिश हो जाती है। और हम एक टैंकर के लिए गवर्नमेंट से बोलते हैं हमें टैंकर दीजिए, पानी चाहिए हमें, मगर ये नहीं सोचते हमारा जो बारिश होता है तो कितने टैंकर हमारे आंखों के सामने से बह जाते हैं। ये 2 लाख टैंकर डेली हम देखते हैं कि बारिश हो रही है, यार बहुत बारिश हो रही है, हमारे गांव से निकल जा रही है, मगर वो पानी को भी कीमत है। अगर आप बिस्लरी की बोतल लेते हैं तो 20 रुपए आपको देना पड़ता है एक बोतल का, पानी को कीमत है। तो हमारे आंखों के सामने एक दिन में 2 लाख टैंकर पानी ऐसे बह के जाता है 1000 हेक्टर के गांव में। तो हम सेल्फी लेंगे, ज्यादा पानी रहेंगे तो एंजॉय करने के लिए जाएंगे, और ये नहीं सोचते कि इतना बारिश हमारे गांव में हो रही है, उसे किस प्रकार रोका जाए। ओके, तो वो रोकने का काम नहीं करते जो हमारे आंखों के सामने से बह जा रहा है। मैंने पहले बताया कि बिस्लरी की बोतल को आपको 1 लीटर के लिए 20 रुपए देना पड़ता है। आपको पता है कि मुंबई में टैंकर का रेट कितना चालू है? अगर आपके सोसाइटी में बीएमसी में पानी नहीं आता ना तो आपको 2000, 3000, 5000 टैंकर को देना पड़ता है, और वो टैंकर आता है। और जो मैंने सेकंड पिक्चर आपको दिखा है, उस प्रकार की अवस्था होती है लोगों में पानी लेने के लिए। सिर्फ 1000 लीटर का जो टैंकर का पानी लेने के लिए इतनी मारपीट लोगों को करनी पड़ती है। तो एक टैंकर के लिए सपोज आपने एक टैंकर की कीमत पकड़ो 2000 रुपए। ओके, एक टैंकर की कीमत 2000 रुपए।
हमें किसी को कॉन्ट्रैक्टर को देनी होती है कि हमें अगर पानी की जरूरत है, अगर टैंकर मंगाना है तो 2000 आपको देना होता है। तो मुझे बताओ कि हमारे गांव से जो 2 लाख टैंकर बह के गए, ओके, तो उनकी कीमत कितनी हुई, उनका प्राइस कितना हुआ? 2 लाख टैंकर गुनिले 2000 रुपए, उनकी प्राइस कितनी हुई? कौन बताएगा? कितना हुआ? प्रीति जी बोलिए, उसकी प्राइस कितनी हुई? 4 करोड़ रुपए। हाँ। ओके, मुझे बताओ कि स्टूडेंट ने 4 करोड़ रुपए देखे ऐसे? 4 करोड़ रुपए आपने आंखों के सामने देखे कभी? 4 करोड़। तो ये 4 करोड़ रुपए का पानी हम जब ये कैलकुलेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि 200 मिलीमीटर बारिश कम नहीं होती। 200 मिलीमीटर बारिश में 2 लाख टैंकर पानी जमा होता है, वो हमारे आंखों के सामने बह के जाता है हर साल बारिश के टाइम से। और मैं उसे पैसे में काउंट कर दूं तो 4 करोड़ रुपए का पानी हर साल मेरे 1000 हेक्टेयर, यानी कि छोटा गांव है, 1000 हेक्टेयर से गांव से बह के जाता है 4 करोड़ का पानी। कुछ लोग वो पानी स्टोर करते और टैंकर में भरते, और जो लोगों को पानी नहीं है उन लोगों को पानी बेचते। ओके, तो ये समझिए कि 200 मिलीमीटर बारिश कम नहीं होती। और हमारे मुंबई में, ठाणा में, तुम्हारे बदलापुर में कितनी बारिश होती है? 3000 मिलीमीटर। अगर मैं ऐसे बोलूंगा ना 3000 मिलीमीटर बारिश होती है तुम्हारे इधर, यानी कि मैं पैसे को, बारिश को और बढ़ा दूं 300 मिलीमीटर और टैंकर की कीमत में 3000 कर दूंगे ना, तो अमाउंट इतनी हो जाएगी, कैलकुलेटर फूटेगा। इतना पानी दर साल हमारे गांव से बह के जाता है। मुझे एक बात बताओ, ओके, मोदी जी ने 2014 में नोटबंदी की थी, आपको पता है। तो नोटबंदी करने के बाद उन्होंने 100, 500 की नहीं, 500 की और 1000 की नोट बंद करके 2000 की गुलाबी कलर की नोट उन्होंने लेके आए। ओके, समझ लो आज रात 12 बजे आप बैठे हो घर के बाहर, ओके, बारिश का समय भी अभी चालू है, घर के बाहर बैठे और अचानक से कोई नहीं है आपके साथ, और अचानक से ऊपर से बारिश शुरू हुई और वो बारिश के साथ पानी नहीं आ रहा है, 2-2 हजार की नोट हमारे यहाँ पर गिर रही है, हमारे जमीन से बहकर जा रही है 2-2 हजार की नोट। और आपने देखा रात में 12 बजे आप अकेले हो घर के बाहर, आप देख रहे कि ऊपर से आसमान से 2-2 हजार की नोट बह रही है, हमारे नाले से, मेरे ग्राउंड से बाहर, ये अपार्टमेंट से बह के जा रही है, तो आप क्या करोगे? 2-2 हजार की नोट आपकी आंखों के सामने से बह के जा रही है, तो आप क्या करोगे? मैंने पहले ही कहा था पानी को कीमत है, 4 करोड़ रुपए का पानी दर साल बह के जाता है और आपकी आंखों के सामने से 2-2 हजार की नोट बह के जा रही है, तो आप क्या करोगे? सब कलेक्ट करेंगे सर। कलेक्ट करेंगे बाका। और आप आपके फ्रेंड को बुलाएंगे क्या कलेक्ट करने के लिए? प्रीति जी, आप बुलाएंगे हाँ, आपके सर। फ्रेंड को कलेक्ट करने के लिए? हाँ सर, इतना सारा कैसे इकट्ठा करेंगे अकेले? हाँ, तो आप पुलिस को फोन लगाएंगे उस टाइम कि यहाँ पर नोट गिर रहे हैं, मैं कलेक्ट कर रही हूँ, तो आप पुलिस को भी फोन नहीं करेंगे? हाँ बोलिए सर, प्लीज कंक्लूड। ओके सर, कितना समय फिर मेरे पास अभी? सर 5 मिनट। ओके ओके, तो हम देख रहे हैं कि हमारे गांव से जो 2000 मिलीमीटर बारिश हो रही है उसकी कीमत हमने 4 करोड़ रखी। तब हम ये नहीं सोचेंगे कि हम किसी को बोलेंगे, हम कलेक्ट करेंगे, वो पैसे दिख रहे हैं ना, तो पानी की भी कीमत है, तो पानी को भी रोकना जरूरी है। जैसे हम 2000 की नोट कलेक्ट करेंगे तो पानी को भी हमें स्टोरेज करना है, वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए हमें स्टोरेज करने की आवश्यकता होती है। तो आप सभी को मैं धन्यवाद देगा कि आपसे बोलने का मुझे मौका दिया। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आया, इसलिए मुझे फास्ट आपसे बात करनी पड़ेगी, उसको प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। आगे जाके अगर कुछ रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है या मियावाकी प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हो,
कॉलेज में एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उसके बारे में पूरी हमको आपको जानकारी दी जाएगी। और ये जो सेशन है मेरे 4 सेशन कंटिन्यूस होते हैं, मगर 1 घंटे में ये मुझे करना डिफिकल्ट हो रहा है और समय भी अपना 10 मिनट वेस्ट गए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आपके कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन? सर लगता है हमें एक लंबा सेशन 2-4 रोज का हम लोग करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहा। हाँ, मेरा ये 4 सेशन कंटिन्यू करना पड़ता है और समय की थोड़ी पाबंदी है, इसलिए मुझे फास्ट जाना पड़ा। ओके, इट्स ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं। इट इज जस्ट लाइक ए वर्कशॉप। या ओके प्रीति मैडम, कैन वी प्रोसीड टू यस सर। वोट ऑफ थैंक्स? सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर इस प्रोग्राम को हम एनएसएस के लिए, इंटर कॉलेजिएट के लिए रख सकते हैं क्या? यस, आप एनएसएस के माध्यम से गांव में जाते तो वाटरशेड का श्रमदान वहां पर होता है एनएसएस के माध्यम से। और मैं भी एक एनएसएस स्टूडेंट रहा हूँ और मैं शर्मिला मैडम को पहले एक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं जब स्टूडेंट था तो शर्मिला मैडम प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर थी और उनकी वजह से मैं आज इस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा हूँ। तो एनएसएस के माध्यम से आप अगर कुछ गांव में जाते तो इस प्रकार के लेक्चर भी रखते हो और कुछ गांव में इस प्रकार की एक्टिविटी भी हम ले सकते हैं कि पानी की स्टोरेज करने के बावजूद, तो बिल्कुल कर सकते हैं सर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन है। एक कोमल अदसुल ने मैसेज किया है, हम कैसे पानी को जमा कर सकते हैं? हाँ, तो मैंने अभी तो ये स्ट्रक्चर आपको बताया। ओके, आप अगर विलेज में रहते तो उसके लिए फार्म पांड बनाने की जरूरत होगी, माटी नाला बांध, मिट्टी का नाला बनाने की जरूरत होती है। आप अगर सिटी में रहते हो तो आप पानी को जमा करने तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए। आपके अपार्टमेंट में, आपके बंगलों में जो छत पे पानी गिरता है वो जमीन के डायरेक्ट 4x4 का खड्डा लेके जमीन में आप छोड़ सकते हैं। उस प्रकार सिटी में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है और उसके माध्यम से भी आप वाटर लेवल बढ़ सकता है। अपने छत के लिए भी, अपने घर के लिए भी आप करोगे तो आपके बोर जो है, बोर इंक्रीज होगा, उसको मई तक पानी की कमतरता नहीं रहेगी। तो उस प्रकार का भी आप कर सकते हो। Anyone wants to ask more questions? Okay, we have to proceed. Okay. Thank you, sir, for guiding us. It was very informative session. Moving towards the end of our session, I request Jha sir to propose formal vote of thanks. थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। Okay. जैसा कि सर ने बताया, जो वाटर हार्वेस्टिंग की जो डिफरेंट वेराइटीज हैं उसके थ्रू ना केवल हम अपनी वाटर अवेलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, वाटर के क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, वाटर लेवल को बढ़ा सकते हैं, बल्कि वाटर क्वालिटी भी डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि ये जो रेन हार्वेस्टिंग है, बारिश की जो पानी होती है वो डिस्टिल वाटर होता है, प्योर वाटर होता है। वो अंडरग्राउंड जो वाटर, जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ हो गया है, उससे जो पॉल्यूटेड हो गया है, उसकी भी क्वालिटी बढ़ सकती है। सो थैंक यू सर। हम लोग फिर वर्कशॉप करेंगे क्योंकि ये एक सेशन से काम चलने वाला नहीं है। आपने जो लाइव एग्जांपल्स दिए उसके बिहाफ में मैं ये कह सकता हूँ जो हमें और ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। सो आई एम डॉक्टर कृष्ण झा। It is my pleasure to propose vote of thanks. First of all, I am grateful to our management, Bharat Friends Association, for their kind permission to organize such type of session. I am thankful to our in-charge principal for her motivational and guiding words. She is always behind to organize these types of session. She is really mentor of our college. I am thankful to today's resource person, Mr. Ashish Lord sir. He has provided a lot of examples that how can we manage the water resources, how can we recharge our water bodies, and how can we improve our underground water levels. I am thankful to Dr. Savita Punjabi, the staff secretary madam, for her presence during entire session. I am thankful to all faculties for attending the session. I am thankful to our all team members. I am thankful to librarian madam
for their technical support. I am thankful to our today's anchor, Madam Preeti Shah, for fantastic anchoring. Last but not least, I am thankful to all the participants and students for their patience listening. Thank you all. Thank you, Ashish sir. Thank you. Thank you. Okay. धन्यवाद. Thank you, everyone. Students, please fill the feedback form. It is given in the chat box.